السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے نئی کہانی ویمپائر کی جدائی۔ آگ، پانی اور تیل کا ملاپ خوفناک شور برپا کر رہا تھا۔ جہاز سمندر کی تہہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن اس کے ڈھانچے سے لپکتے ہوئے شعلے آسمان کی خبر لاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب جہاز کا ڈھانچہ ایک کرب انگیز انداز میں غرق ہوا تو پانی کی بڑی بڑی کئی لہریں چاروں طرف پھیل گئیں۔ ایک بڑی سی لہر لائف بوٹ سے ٹکرائی۔ لائف بوٹ ڈگمگائی، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد پرسکون ہو گئی۔ وہ خطرے سے نکل چکے تھے۔ ٹونی نے اطمینان کا سانس لیا اور مستول سے تھوڑی ٹکا کر سمندر کے پانی کی طرف دیکھنے لگا، جو اب نسبتاً پرسکون ہو چلا تھا۔ اس کی سطح پر چھوٹی بڑی بے شمار چیزیں تیر رہی تھیں۔ ان چیزوں میں کئی سفید ٹوپیاں بھی تھیں، جو تھوڑی دیر پہلے تک اس بحری جہاز کے مایہ ناز عملے کے سروں کی زینت تھی۔ ٹوپیاں سمندر کی سطح پر تیر رہی تھی اور ٹوپیوں والے سمندر کی تہہ میں چلے گئے تھے۔ ایک آہ بے اختیار ٹونی کے لبوں سے پھسل گئی۔ کراموئل نے اپنی قمیض اتار کر ایک طرف ڈال دی اور اس کی آنکھ کے نیچے ایک چھوٹا سا زخم تھا۔ وہ اپنی پیشانی سے پسینہ پونجھتے ہوئے ٹونی سے مخاطب ہوا، تم جہاز کے عملے میں تھے؟ ہاں، ملاح یا کچھ اور؟ ملاح۔ خوب، کراموئل نے ایک دبی دبی ہنسی کے ساتھ کہا، تمہارا جسم تو اتنا توانا نظر نہیں آتا کہ ملاحی کی مشقت برداشت کر سکے، پر خیر یہ بتاؤ کہ اس کشتی کی ناخدائی کا فرض بھی انجام دے سکو گے کہ نہیں؟ اس کی شاید ہی ضرورت پیش آئے۔ سمندر کا یہ حصہ جہازوں کی ایک خاصی معروف گزرگاہ ہے۔ جلد ہی کوئی نہ کوئی جہاز ہمیں بٹھا لے گا۔ کتنی جلد؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے جہاز سے SOS کا پیغام بھی نشر کیا تھا کہ نہیں۔ یہ سارا سانحہ ہوا بھی تو بڑی تیزی سے ہے۔ تو کوئی نہ کوئی جہاز ہماری مدد کو آ پہنچے گا اور اس وقت تک ہمیں بھوکوں مرنا پڑے گا۔ ٹونی تھکے ہوئے انداز سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کلنٹن میرین سینٹر کی کارکردگی کا بہت کم اندازہ لگاتے ہو میرے دوست۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خوراک کی الماری کھول دی۔ پانی، بسکٹوں کے ڈبے، نمک لگا گوشت، ڈبوں میں بند پھلوں کے جوس، ابتدائی طبی امداد کا سامان، الماری میں بہت کچھ موجود تھا۔ یہ ہمارے لیے کافی زیادہ ہے، ٹونی نے کہا اور پھر کشتی کے گرد سمندر کی لہروں کی طرف دیکھتا ہوا بولا، سوچتا ہوں کہ جہاز کے عملے میں سے کوئی شخص بھی زندہ بچا ہے کہ نہیں۔ کراموئل نے نفی میں سر ہلایا، کوئی نہیں بچا، نہ عملے میں سے اور نہ مسافروں میں سے۔ سب جہاز کے ساتھ سمندر کی تہہ میں چلے گئے۔ ٹونی بدستور سمندر کی لہروں کی طرف دیکھتا رہا۔ چھوٹی بڑی کئی چیزیں اب بھی سمندر کی لہروں میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ خیر، ہمیں بھوکا نہیں رہنا پڑے گا، کراموئل نے اطمینان بھرے انداز سے کہا۔ ہاں، یہ تو بتاؤ، کیا اس جہاز میں تمہارا کوئی قریبی رشتہ دار، عزیز یا دوست بھی تھا؟ نہیں، ٹونی نے یہ کہتے ہوئے اور پھر اپنے گیلے بالوں کو پیشانی سے ہٹاتے ہوئے کراموئل سے پوچھ لیا، وہ تمہارا؟ میرا کوئی نہیں، میرے سب مر کھپ چکے ہیں۔ میں اپنے آپ کو اس بھری پوری دنیا کا ایک فرد سمجھ کر مطمئن ہو جاتا ہوں۔ خوش باش اور زندہ دل لوگوں کے ساتھ کھانا پینا اور ان کی گفتگو سے محفوظ ہونا، یہی میرے لیے کافی ہے۔ لائف بوٹ میں ایک دوسرے سے قدرے فاصلے پر بیٹھے ہوئے دونوں افراد نے ایک دوسرے کو اپنے اپنے ماضی سے آگاہ کیا۔ کراموئل نے اس کے اپنے بیان کے مطابق وہ ایک مہم جو انسان تھا، کوئی بستی، کوئی شہر زیادہ دیر تک اسے اپنے طلسم کا اسیر نہیں رکھ سکا تھا، اور وہ ایسی جگہ شاذر ہی جاتا تھا جو اس نے پہلے دیکھ رکھی ہو۔ وہ ملایا کے ریزیڈنٹ کا سیکرٹری رہ چکا تھا، چین میں ساگوان کا کاروبار کرتا رہا تھا۔ اس کی بنائی ہوئی چند ایک تصویروں کی نمائش پیرس کی مشہور آرٹ گیلری میں ہو چکی تھی۔
اب وہ دمشق جا رہا تھا اور اس کا مقصد ان دستاویزات کا معائنہ کرنا تھا جن میں اس کے اسلاف کا ذکر تھا۔ میری پیدائش کے خاندان کاغذات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے خاندان کا آغاز کہیں اور ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے خاندانی پس منظر میں جھانکنے کے اس شغل کو تم احمقانہ تصور کرو، لیکن یہ میرا مشغلہ ہے جو میں کئی سالوں سے اختیار کیے ہوئے ہوں۔ میں پدر میں سلطان بود کا نعرہ نہیں لگاتا، محض حقائق کی تلاش کر رہا ہوں۔ اس میں قباحت کی کوئی بات نہیں میرے دوست، ٹونی نے کہا۔ مجھے تمہاری دلچسپ اور رنگا رنگ ماضی پر رشک آتا ہے۔ تو کیا تمہارا ماضی بے رنگ ہے؟ بے رنگ تو خیر نہیں، لیکن اس کے رنگ اتنے دلکش نہیں ہیں۔ میں اٹلانٹا کی نواحی بستیوں میں پیدا ہوا تھا۔ میرا بچپن خاصی مشکلات کا دور تھا۔ شاید تم بچپن میں بھی اتنے طاقتور نہیں تھے کہ اپنی عمر کے دوسرے لڑکوں سے نمٹ سکتے۔ ٹونی نے عصب حساس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دل میں حیران ہو رہا تھا کہ اس کے کمزور جسم اور پست قد کی طرف کرامویل نے دوسری مرتبہ اشارہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں ناگواری کا احساس نہ تھا۔ ٹونی شاید کرامویل کی دلکش شخصیت سے مسحور ہو گیا تھا، یا پھر اس کے خیال میں کرامویل کی اس بات میں توہین یا حقارت کا شائبہ تک نہیں تھا۔ میں نے کافی کچھ پڑھا ہے، ٹونی نے اپنی بات جاری رکھی۔ فلکیات سے مجھے شروع ہوئی سے دلچسپی تھی اور اس دلچسپی کی بدولت ہی میں نیوی میں شامل ہوا، اور اس دلچسپی کی وجہ سے نیوی سے فارغ ہونے کے بعد کلنٹن میرین سینٹر سے وابستہ ہو گیا۔ میں اپنے گھر واپس جانے کے بجائے سمندر کے زیادہ قریب رہنا چاہتا تھا۔ وہ کچھ دیر اسی طرح باتیں کرتے رہے، پھر ٹونی نے کہا، آؤ اب ہم کچھ کھا پی لیں، اور میرا خیال ہے کہ تمہیں اپنی آنکھ کے نیچے زخم کا بھی کچھ بندوبست کرنا چاہیے۔ کرامویل نے اپنے بھاری سر ہلا دیا۔ تم چاہو تو کھانا کھا لو، مجھے اس وقت بھوک نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنی زبان سے اس خون کو چاٹ لیا جو اس کی آنکھ کے نیچے زخم سے آہستہ آہستہ رس رہا تھا۔ انہوں نے لائف بوٹ کے بلائی کنارے پر نشان لگا کر دنوں کا حساب رکھنا شروع کر دیا۔ 2 دن گزر چکے تھے جب ٹونی پہلی مرتبہ کرامویل کے بارے میں حیران ہوا۔ انہوں نے خوراک اور پانی کا اپنے طور پر راستی کا انتظام کیا تھا۔ یہ طے شدہ تھا کہ ایک شخص ایک وقت میں ایک خاص مقدار سے زیادہ خوراک اور پانی نہیں لے گا۔ یہ محض ایک احتیاطی بندوبست تھا، ورنہ لائٹ بوٹ کی الماری میں ان دونوں کے لیے کافی سامان موجود تھا۔ مگر حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ اب تک ٹونی نے کرامویل کو ایک بار بھی کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور وہ یہ سوچ کر اور زیادہ حیران ہوتا تھا کہ اس تن و توش کے آدمی کی بھوک بھی خاصی زیادہ ہوگی۔ جب ٹونی نے کرامویل سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے محض مسکراتے ہوئے کہا، میرے دوست، میں اپنا کھانا رات کے وقت کھانا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ ٹونی نے اس کا کوئی زیادہ خیال نہ کیا، اور اس نے سوچا کہ شاید کرامویل کا معدہ خراب ہے، یا شاید وہ بھی ان بدقسمت لوگوں میں سے ایک ہے جو دوسروں کی موجودگی میں کھانا کھاتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہیں۔ گو یہ ظاہر تھا کہ وہ ایسا خوف نہیں محسوس کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اچھی خاصی جارحانہ شخصیت کا مالک تھا۔ مجھے کیا، ٹونی نے اپنے آپ سے کہا، چاہے وہ سر کے بل کھڑا ہو کر کھانا کھائے۔ اگلی صبح جب ٹونی نے اپنے حصے کا کھانا لینے کے لیے الماری کھولی تو اس میں سامان کل جتنا ہی پڑا تھا، کوئی چیز بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ اس سے اگلی صبح بھی ایسا ہی ہوا۔ اب 5 دن گزر چکے تھے۔ ٹونی کو اب ایک اور چیز بھی پریشان کرنے لگی تھی۔ وہ کھانا باقاعدگی سے اور تقریباً پیٹ بھر کر کھا رہا تھا۔ اس کے باوجود اس پر ایک عجیب قسم کی غنودگی آمیز نکاہت طاری رہنے لگی تھی۔ اس کا حال یوں رہنے لگا جیسے وہ نہ جانے کتنے دنوں سے فاقے سے ہے۔ اس نے اپنے طے شدہ حصے سے بھی زیادہ خوراک کھائی، لیکن اس کا بھی کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ کمزوری روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے برعکس کرامویل ہر صبح اپنی چمکتی آنکھوں اور درخشاں چہرے کے ساتھ اسے اداب کرتا۔ اب دونوں کے چہروں پر داڑھیاں نمودار ہو چکی تھی۔ ٹونی کو تو اپنی بڑی ہوئی داڑھی سے سخت اذیت محسوس ہوتی تھی،
लेकिन क्रामवेल अपनी दाढ़ी के बालों पर बड़े मज़े से हाथ फेरता रहता और कभी कभी मूंछों को भी ताव देने लगता। टोनी मारे नकाहत के कश्ती में एक तरफ लेटा हुआ क्रामवेल की तरफ देखे जा रहा था। उसने कहा, क्रामवेल मेरे दोस्त, कहीं तुम मेरी खातिर फाका कशी तो नहीं कर रहे? तुम जानते हो कि उसकी कतन कोई ज़रूरत नहीं। नहीं मेरे दोस्त, मैं फाके काहे के लिए करूं? ऐसा खाना तो मुझे आज तक मुयस्सर नहीं आया, लेकिन अलमारी में जो खुराक है उसे तो हाथ तक नहीं लगाया तुमने। ओहो, क्रामवेल ने अपने भरे भरे बाजू फैलाए। सूरज की रोशनी उसके जिस्म के सुनहरी माइल बालों से खेल रही थी। यहाँ काम भी तो कोई नहीं, बेकारी की वजह से मेरा मैदा कुछ खराब रहता है। एक दिन और गुजर गया। टोनी की हैरानी बढ़ती जा रही थी। हर गुजरते दिन, हर गुजरते लम्हे के साथ वो खुद को ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा था। कश्ती में एक तरफ लेटे हुए वो धूप सेंक रहा था और उसकी नज़र धुंधलाई हुई सी थी और जिस्म जैसे बेहिसो हरकत। उसने एक हाथ बढ़ाकर समुंदर के पानी में डाला, लेकिन जब उसकी उंगलियां एक मछली के जिस्म से टकराईं तो उसने फौरन अपना हाथ बाहर खींच लिया। क्रामवेल बराबर उसकी तरफ देख रहा था। उसने कहा, ये शार्क मछलियां भी बिल्कुल कुदरत की और चीज़ों की तरह हैं। ये दूसरों को मारकर खुराक हासिल करती हैं, मगर उसके बदले कुछ नहीं देती और फिर उनसे बड़ी मछलियों की खुराक बन जाती हैं। यही सिलसिला चलता रहता है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। यही दुनिया है। इंसानों के बारे में क्या ख्याल है? वो तो इन सब से बदतर हैं। टोनी क्रामवेल की इस जवाब पर महज गौर करता रह गया। अब 7 दिन गुजर चुके थे। टोनी और कमज़ोर होता जा रहा था। उसके साथ उसे कामल यकीन था कि क्रामवेल ने खुराक की अलमारी को हाथ तक नहीं लगाया। 9 दिन गुजर चुके थे जब टोनी को ये मालूम हुआ कि क्रामवेल फिल वाक़या अपने आप को भूखों नहीं मार रहा था, उससे अपनी खुराक बराबर मिल रही थी। और टोनी पर यह इंकशाफ भी हुआ कि वो खुराक क्या है। ये इंकशाफ खासा हौलनाक था। रात का वक़्त था और समुंदर किसी कदर हिजानी हालत में था। समुंदर की लहरें रह रह कर लाइफ बोट से टकरा रही थी। उन लहरों की धप धप की आवाज़ ने टोनी को गहरी नींद से बेदार कर डाला और उसके साथ ही उसे अपने करीब किसी वजूद का तकलीफ़दा एहसास भी हो रहा था। टोनी ने बेचैनी से करवट ली और वो वजूद ज़रा परे हट गया। टोनी ने अपनी आधी खुली आंखों से देखा। क्रामवेल उसके करीब खड़ा था और उस पर झुका हुआ था। तुम नींद में चीखें मार रहे थे मेरे दोस्त? क्या कोई डरावना ख्वाब देख रहे थे? क्रामवेल की आवाज़ इंतहाई शीरीं और तस्कीन बख्श लहजा लिए हुए थी। मेरा गला, उसमें सख्त चुभन और जलन हो रही है। ये समुंदर की नमकीन हवा का असर है मेरे दोस्त। सुबह तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। टोनी को अपना चेहरा मिट्टी की तरह बेजान महसूस हो रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने होंठ खोले। मेरा ख्याल है मैं मर रहा हूँ। नहीं, तुम मर नहीं रहे हो। तुम नहीं मरोगे। तुम्हें मरना नहीं चाहिए। तुम मर गए तो मैं भी मर जाऊँगा। टोनी क्रामवेल के इन अल्फाज पर गौर करने लगा। बादिए नज़र में ये अल्फाज एक दोस्त की दूसरे दोस्त से दिली वाबस्तगी का मजहर थे, लेकिन टोनी महसूस कर रहा था कि इन अल्फाज के पीछे कोई और हकीकत भी छुपी हुई है और ऐन मुमकिन है वो कोई खौफनाक हकीकत हो। उसका गला बुरी तरह जल रहा था। जलन और चुभन से बेताब होकर उसका एक हाथ गले तक पहुंचा तो उसे किसी गाड़ी सयाल शय का लमस महसूस हुआ। ये एक अजीब सा जज्बा तजस्सुद के तहत उसका हाथ गले से होकर ज़ुबान तक आ गया। लेकिन जब टोनी ने अपने हाथ पर ज़ुबान फेरी तो उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। ये खून था, उसका अपना खून, और ये खून क्रामवेल पी रहा था। बिजली के कूंदे की तरह उस पर एक हौलनाक हकीकत का इंकशाफ हुआ जो कितने ही दिनों से उसे परेशान किए हुए थी। क्रामवेल पिछले 9 दिन से उसका खून पी रहा था और उसकी कमज़ोरी का बायस यही चीज़ थी। वो कोशिश करके उठा और कोहनियों के बल हो बैठा और फिर क्रामवेल से मुखातब हुआ। क्रामवेल, तुम ड्रेकोला हो, वो इफ़रत जो रात के अंधेरों में इंसानों का खून पीता है। बताओ, क्या नहीं हो? उसके जवाब में अंधेरे में क्रामवेल की एक तवील और नमकीन हंसी सुनाई दी। मेरी बात का जवाब दो क्रामवेल, टोनी ने कदरे बरहमी से कहा।
तुम ड्रेकुला हो ना? हाँ। और टोनी ये सुनते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो सूरज की किरणें उसकी आंखों में चकाचौंध पैदा कर रही थी। उसने अपना सर दूसरी तरफ फेरते हुए एक लंबा सांस लिया और उसके साथ ही उसके कान में सीटी की आवाज़ आई। क्रामवेल सीटी पर किसी जर्मन लोकगीत की धुन बजा रहा था। टोनी को होश में आता देखकर क्रामवेल ने सीटी बजानी बंद कर दी। आदाब अर्ज़ है मेरे दोस्त, उम्मीद है कि रात तुमने ख्वाब आराम से बसर की होगी। टोनी आंखें फाड़े उसकी तरफ देखने लगा और उसके होंठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ा रहे थे। क्रामवेल मुस्कुरा दिया। तुम्हें मेरी तरफ ऐसी नज़रों से नहीं देखना चाहिए मेरे दोस्त। यकीन रखो कि मैं बिल्कुल बेज़रर हूँ। फिर वो एक हल्का सा कहका लगाते हुए कहने लगा, तुम जानो सूरत हाल इससे बदतर भी हो सकती थी। मसलन मैं ड्रेकुला की बजाय वम्पायर या भेड़िया होता तो। उसने 2-1 लम्हे इंतज़ार किया, फिर टोनी को खामोश पाकर कहने लगा, तुम शायद इंसान के भेड़िया बन जाने को महज अफसाना तराजी समझते होगे, लेकिन ये एक हकीकत है, बिल्कुल इस तरह जैसे ये समंदर, ये कश्ती और हम तुम एक हकीकत है। एक बार मैं पेरिस में एक ऐसी औरत के साथ 3 महीने रह चुका हूँ जो दिन के वक़्त पैबलक में खिदमतगार और रात के वक़्त भेड़िया होती थी। वो अपने शिकार का इंतखाब उसकी जिल्द देख कर करती थी। टोनी खामोशी से क्रामवेल की बातें सुनता रहा। उसे यकीन था कि क्रामवेल महज सूरत हाल की संगीनी को गवारा बनाने की खातिर इधर उधर की हाँक रहा है। और जब पुलिस अफसर ने देखा कि वो औरत जिस गोली से हलाक की गई थी वो महज आम शीशे की है, तो वह कहने लगा, साहबान आपने इस हसीना से बड़ी ज़्यादती की है। हाँ, वाकई ये बड़ी ज़्यादती थी कि उसे चांदी की गोली की बजाय शीशे की गोली से हलाक कर डाला गया। वो लम्हा मेरे लिए बड़ा यास अंगेज़ लम्हा था। बंद करो ये बकवास। टोनी बेचैन होकर चीख उठा, जाओ चमगादड़ या कुछ और बनकर उड़ जाओ और मेरी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ। मेरा खून और तुम्हारे मैदे में। वो कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन नकाहत ने उस पर गलबा पा लिया और वो बेदम सा होकर कश्ती के फर्श पर लेट गया। उसकी आंखें बंद थीं और गला यूं भारी महसूस हो रहा था जैसे वो बीक वक़्त कहका लगाना और दर कह कर देना चाहता हो। मैं अपने आप को चमगादड़ की सूरत में तब्दील नहीं कर सकता मेरे दोस्त, क्रामवेल कह रहा था, और ना मैं दिन के वक़्त किसी ताबूत में होता हूँ और ना दिन की रोशनी में मेरे लिए मौजब हलाकत है। ये सब तहम्मात हैं और हम आम इंसानों के लिए इतने ख़तरे का बायस नहीं जितना आम इंसानों के ये जहालत पर मबनी तहम्मात हमारे लिए बासे ख़तर साबित होते हैं। हमें जाहल इंसानों से खौफ आता है क्योंकि उनकी तादाद बेहद ज़्यादा है और हमारी तादाद बेहद कम। टोनी ने आंखें खोल दी और कोशिश करके कहा, तुम दोबारा मेरे जिस्म को हाथ तक नहीं लगाओगे, सुना क्रामवेल? सुन लिया मेरे दोस्त, लेकिन मैं मजबूर हूँ। लेकिन मैं तुम्हें उसकी इजाज़त नहीं दूंगा। मुझ में अभी इतनी ताकत है कि तुम्हें अपने जिस्म से दूर रख सकूं, लेकिन इतनी ताकत तो यकीनन नहीं कि अगर मैं तुम्हारा खाना पीना भी बंद कर दूं तो उसे हासिल कर सको। टोनी ने बेबसी से सर हिलाया। क्रामवेल ठीक ही तो कह रहा था, मैं समुंदर में छलांग लगा दूंगा। ऐसा तो मैं कतई नहीं होने दूंगा। आखिर तुम इस नागुज़ेर सूरत हाल से समझौता क्यों नहीं कर लेते मेरे दोस्त? हर रोज़ मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से का राशन दूंगा और रात को तुम मुझे मेरा राशन दोगे। तुम मेरे सहारे ज़िंदा रहो और मैं तुम्हारे सहारे। इससे ज़्यादा इंसाफ की बात क्या हो सकती है? तुम वैसी हो, खौनख्वार और दरिंदे हो, मैं हरगिज़। क्रामवेल ने एक आह भरी और मुंह फेर कर समुंदर की तरफ देखते हुए कहने लगा, वैसी, खौनख्वार, दरिंदा। आम इंसान हमें ऐसे ही खिताब देते रहे हैं, और वो इंसान जो जिंदा जानदारों का गोश्त भून कर खा जाते हैं। टोनी के लिए बराबर रगबत उस नागज़ीर सूरत हाल से समझौता करना सरासर नामुमकिन था। क्रामवेल पूरे 9 दिन तक उसकी लाइल्मी में उसका खून पीता रहा था, लेकिन अब क्रामवेल का पेट भरने के लिए खुद शह रग पेश करने का तसव्वुर उसके लिए बड़ा ही अजियतनाक था। उसने इनकार कर दिया और जवाब में क्रामवेल ने उस पर खुराक का दरवाज़ा बंद कर दिया। क्रामवेल खाने और पानी की अलमारी पर पहरेदार बनकर खड़ा हो गया। भरेगा तो हम दोनों का पेट भरेगा,
भूखों मरेंगे तो हम दोनों भूखे मरेंगे। करामवेल बआसानी 2-4 रोज का फाका बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन टोनी की हालत उस काबिल न थी कि वो एक दिन का फाका भी बर्दाश्त कर सके। एक वक्त का खाना ना मिलने पर ही जब उसकी हालत गैर होने लगी तो उसने हथियार डाल दिए। अब टोनी दिन के उजाले में अपना पेट भरता था और करामवेल रात की तारीकी में, और टोनी की तवक्का के बिल्कुल बरअक्स है। ये सूरत इतनी तकलीफदा साबित नहीं हुई जितनी उसे तवक्का थी। करामवेल जब उसका खून पीने के लिए उसकी शह रग में दांत गाड़ता तो एक शदीद चुभन सी ज़रूर महसूस होती, लेकिन उसके बाद उस पर एक मदहोशी की कैफियत तारी हो जाती थी, जैसे उसे माफिया का इंजेक्शन लगा दिया गया हो, और हर बार उसे पहले से कम चुभन महसूस होती, हत्ता कि ये एक ऐसा मामूल बन गया जिसकी शायद कोई अहमियत नहीं रही। अब दिन में उसका ज़मीर उसे मलामत नहीं करता और रात उसके लिए एक मदहोशी का पैगाम बनकर आती थी। करामवेल ड्रैकुला या वैम्पायर था या नहीं, उसकी बातें टोनी के लिए यकीनन बड़ी दिलचस्प थीं। वो वाज़े तौर पर एक कामयाब मजलसी शख्सियत का मालिक था। तुम बहुत जर्द हो गए हो मेरे दोस्त, एक रोज़ करामवेल ने टोनी से कहा। शायद मैं बहुत हरीस साबित हो रहा हूँ। तुम्हारे इस जर्द चेहरे और बड़ी हुई दाढ़ी को देखकर मुझे ऑस्ट्रेलिया का एक शायर याद आता है। एक तवील अरसे तक वो मेरा दिल पसंद साथी रहा। तुम शायद ये नहीं जानते कि हम हर ऐरे गैरे का खून पीने के आदी नहीं हैं, जैसा कि तुम्हारी कहानियों में लिखा जाता है। हम अपनी खुराक के मामले में इंसानों से कहीं ज़्यादा नफासत पसंद वाक़या हुए हैं। तुम ड्रैकुला कैसे बन गए? टोनी ने पूछा। मैं एरिक करामवेल ड्रैकुला कैसे बन गया? ये एक ऐसा सवाल है जिसमें बड़े पेच हैं, ऐसे पेच जिन्हें खोलना आसान नहीं। बहरहाल मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि मेरे आबाओ जदाद भी ड्रैकुला ही थे, ड्रैकुला और वैम्पायर भी। रहा ये मसला कि हम कैसे वजूद में आए, तो इसका हतमी जवाब देना बड़ा मुश्किल है। करामवेल कुछ देर तक अपनी दाढ़ी को सहलाता रहा, फिर कहने लगा। बाज़ लोग कहते हैं कि इंसान और बंदर जब अपने मौरसे आला से पैदा हुए तो उनके साथ एक तीसरी नस्ल भी थी, जिसे इन दोनों की नफरत ने कैरो मसामी में धकेल दिया। दूसरों का कहना है कि हम किसी दूसरे सैयारे से कुर्रे अर्द पर आए हैं। बाज़ किताबों में तो इस तरफ भी इशारा मिलता है कि रोए ज़मीन पर एक नस्ल इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ भी थी, लेकिन इंसानी गलबे के ज़ाहिरी असर उसने इंसानों जैसे एतवार इख्तियार कर लिए। और फिर ये भी कहा जाता है कि हमें शैतान के चेले और शैतानी फ़ौज का एक दस्ता है, और शैतान ने हमें दुनिया में रंजो गम पैदा करने के लिए छोड़ रखा है। एक तवील सांस लेने के बाद करामवेल ने फिर कहना शुरू किया। रवायात, मन घड़त रवायात, इन्हीं मन घड़त और जाहलाना रवायात की वजह से हम पर बे इंतहा जुल्म तोड़े गए हैं। हमें कैद में डाला गया, जिंदा जलाया गया, महज इस बिना पर कि हमारे जिस्म का केमियाई निज़ाम इंसानी जिस्म के केमियाई निज़ाम से मुख्तलिफ है। हम अपनी ग़िज़ा पर बराह रास्त सरचश्मा ज़िंदगी से हासिल करते हैं, जबकि इंसान मुर्दा जानवरों का गोश्त भून कर खा जाता है, और उसके बावजूद हमें वहशी और दरिंदा कहा जाता है। तुम खुद इंसाफ करो, वहशी और दरिंदा कौन है, हम या तुम? फिर टोनी को खामोश पाकर वो खुद ही बोला। इंसान ही दरिंदा है, इंसान ही वहशी है। जिंदगी उसी तौर रेंगती रही, और दिन को टोनी को खाना मिलता रहा और रात को करामवेल को अपनी ग़िज़ा दस्तयाब होती रही। अब टोनी के दिल में करामवेल के मुतल्लक खौफ या नफ़रत का कोई जज्बा नहीं रहा था। उसकी जगह एक अजीब उनस और अपनायत के जज्बे ने ले ली थी। टोनी का दिल एक अजीब तरह के सुकून से सरशार रहने लगा। अब उसके दिल के किसी गोशे में भी मज़ाहमत का ख्याल नहीं रहा। करामवेल की ज़िंदगी उसकी अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई थी। अंधेरे की ये सोहबत उसके लिए सरापा तस्कीन साबित हो रही थी। अब टोनी रात के वक़्त करामवेल की आमद का यूं मुंतज़िर रहने लगा जैसे वो किसी दोस्त की आमद का मुंतज़िर हो। हर दिन और हर रात वो आपस में अपनी ज़िंदगियों का तबादला करते रहे। हर रोज़ करामवेल उसके वजूद को ज़िंदगी से भरता और फिर हर शब उससे अपनी कुव्वत हयात हासिल करता। इन दोनों की ज़िंदगी एक हो चुकी थी। अब उन्होंने कश्ती पर निशान लगाने छोड़ दिए थे। दोनों में से किसी को भी ठीक से याद न रहा
کہ उन्हें समुंदर की वसी पहनाइयों में भटकते हुए कितने दिन हो चुके हैं। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि क्रामवेल टूनी के राशन में कमी करने पर मजबूर हो गया। तुम देख रहे हो मेरे दोस्त, इसके बगैर और कोई चारा नहीं। तो क्या हमारे पास खाने पीने का सामान बिल्कुल ख़त्म होने वाला है? हाँ मेरे दोस्त, उसने अफसोस भरे अंदाज में कहा, तकरीबन ख़त्म होने वाला है, और अगर तुम्हारा राशन ख़त्म हो गया तो ज़ाहिर है कि मेरा राशन भी ख़त्म हो जाएगा। मुझे उसकी कोई ख़ास फिक्र नहीं है दोस्त, टोनी ने आहिस्ता से जवाब दिया। मैं तो अब भूख भी बहुत कम महसूस करता हूँ। पहले तो खूब पेट भरकर खाने के बाद भी मेरी तसल्ली नहीं होती थी, लेकिन अब तो खाने को हाथ लगाने को भी जी नहीं चाहता। शायद ये इतने दिनों की सुस्त और बेकार ज़िंदगी का असर है। क्रामवेल मुस्कुरा दिया। शायद तुम ठीक कहते हो और शायद नहीं। बहरहाल अब हमें किसी आते जाते जहाज़ पर नज़र रखनी चाहिए। तुम तो कहते हो कि यह जहाज़ों की एक मारूफ गुज़रगाह है, लेकिन अब तक कोई जहाज़ इधर से गुज़रता दिखाई नहीं दिया। बहरहाल अगर कोई जहाज़ हमारी मदद को जल्द ना आया तो हमें भूखा मरना पड़ेगा। फ़िलहाल तो मैंने तुम्हारे राशन कम किया है, और ज़ाहिर है कि उसके साथ मुझे अपने राशन की भी कमी करनी होगी। मुझे उसकी परवाह नहीं। तुम्हारी हालत बेहद काबिल रहम है मेरे दोस्त, क्रामवेल ने कहा। जब तुम्हारी ताकत बहाल हो जाएगी तो फिर तुम्हें उसकी बहुत परवाह होगी। फिर तुम भी मेरी तरह ज़िंदा रहने की ख्वाहिश करोगे। हो सकता है, लेकिन इस वक्त तो मैं महसूस करता हूँ कि मौत बहुत आसान और खुशगवार होगी, और शायद मौत को गले लगाना दुनिया में वापस जाने से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। दुनिया दुखों और बुराई से भरी हुई है, इसमें कोई शक नहीं मेरे दोस्त, लेकिन ज़िंदा रहने की लगन हम सब को इस दुनिया में ज़िंदा रहने पर मजबूर किए रखती है। टोनी ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वो बेहिस्सो हरकत लेटा हुआ कुछ सोच रहा था। जब से जहाज़ गर्क हुआ था तब से पहली बार वो ये सोच रहा था कि इस दुनिया में वापस जाने से खौफ महसूस हो रहा है। और फिर क्रामवेल का मसला भी तो है, क्या उसके मुतल्लिक़ हकाम को इत्तला देनी चाहिए? नहीं, उसके ज़हन ने फैसला किया और दिल ने तायद कर दी। इस तरह तो दुनिया वालों को मेरे मुतल्लिक़ पता चल जाएगा कि मैं जानते बूझते एक वम्पायर को अपना खून पिलाता रहा हूँ। 1-2 रोज़ नहीं, ना जाने कितने रोज़। जो कुछ हुआ था, जो कुछ हो रहा था, वो इंतहाई शर्मनाक और काबिल नफरीन था, लेकिन वो जो कुछ कर रहा था उसके सिवा और कुछ कर भी तो नहीं सकता था। फिर ये भी तो हो सकता है कि दुनिया में वापस पहुंचने के बाद भी क्रामवेल उसके साथ ताल्लुक़ बरकरार रखने पर इसरार करे, फिर क्या होगा? ये ख्यालात टोनी को बुरी तरह परेशान करने लगे। टोनी ने इस तरह पहले कभी सोचा ना था, लेकिन जल्द ही उसके साफ ज़हन पर धुंध सी छा गई, और टोनी और क्रामवेल की ज़िंदगी फिर उसी मामूल पर अस्तवार हो गई। उस रोज़ जब क्रामवेल ने उफ़क़ पर धुआं देखा तो टोनी मुश्किल ही से होश में था। क्रामवेल ने उसे अपने बाजुओं का सहारा देकर खड़ा किया ताकि वह भी देख सके। ये एक जहाज़ था और कश्ती की तरफ ही आ रहा था। तो गोया अब हमारा सफ़र ख़त्म होने वाला है, क्रामवेल ने अपने हाथ नरमी से टोनी के शाने पर रखते हुए कहा, और उसके साथ ही हमारी ज़िंदगी का ये रंगीनी से लबरेज मंजर भी नज़रों से उजल होने वाला है। फिर क्रामवेल के हाथों की इस गिरफ्त सख्त हो गई। मेरे दोस्त, इससे पहले कि जहाज़ यहाँ पहुँचे और जहाज़ के लोग अपने रवायती शोरगुल के साथ हमारी अमदाद को आएं और हमारी परेशानियाँ हमेशा के लिए रुखसत हो जाएं, आओ ज़रा आखिरी बार। और उसके साथ ही क्रामवेल का सर झुका और उसके होंठ टोनी के हलक पर आ गए। टोनी सर से पांव तक कांप गया। क्रामवेल के कंधों पर से उसने करीब आते हुए जहाज़ की तरफ देखा। ये जहाज़ उफ़क़ पर एक धब्बा मालूम हो रहा था, और ये धब्बा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जा रहा था। उसने सोचा, इस जहाज़ पर आदमी होंगे न जाने कितने। अगर उन्होंने क्रामवेल को मेरा खून पीते देख लिया तो न जाने क्या समझें, क्या करें। और वो जो अब तक बरज़ाओ रगबत क्रामवेल को अपना खून पिलाता आया था, दूसरे इंसानों के अमकानी रद्द अमल का तस्वर करके परेशान हो गया, और उस पर एक सरासीमगी की कैफियत तारी हो गई, और उस सरासीमगी में उसने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। कश्ती यकायक डगमगा गई। क्रामवेल टोनी के रद्द अमल के लिए कतन तैयार न था। टोनी ने जो हाथ पैर मारने शुरू किए तो उसका एक पैर क्रामवेल के पेट से टकराया
और क्रामवेल धड़ाम से कश्ती के किनारे से उलटकर पुश्त के बल समुद्र में जा गिरा। शार्क मछलियां तेजी से उसकी तरफ लपकीं, लेकिन फिर उन्होंने क्रामवेल को अपनी खुराक के लिए नामौजू करार दे दिया। मगर ये फैसला उन्होंने क्रामवेल की ज़िंदगी का खात्मा करने के बाद किया था, उससे पहले नहीं। सीता समुद्र पर क्रामवेल की लाश देखकर टोनी की आंखों में आंसू आ गए। वो बार बार कहे जा रहा था, क्रामवेल मेरे दोस्त, मुझे अफसोस है। जब तक क्रामवेल कश्ती में उसके साथ था, टोनी को जहाज़ का एक उम्मीद भरा इंतज़ार था। लेकिन अब क्रामवेल की लाश को देखने के बाद उम्मीद की जगह एक पुरइसरार खौफ ने ले ली थी। जैसे जैसे जहाज़ कश्ती की तरफ आता जा रहा था, टोनी का ये पुरइसरार खौफ बढ़ता जा रहा था और अपनी इस कैफियत पर उसे खुद भी हैरानी थी। जहाज़ कश्ती के करीब आया। जहाज़ के अमले के चंद आदमी जब उसकी तरफ आए तो टोनी का खौफ उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। वो लोग उसे मुसीबत से निजात दिलाने आए थे, लेकिन टोनी को यूँ महसूस हुआ जैसे वो उसका खून करने बल्कि उसका खून पीने के लिए आ रहे हों। उसने एक ज़ोरदार चीख मारी और समुंदर में छलांग लगा दी। इससे पहले कि जहाज़ के अमले के अफराद उसकी मदद को पहुंचते, शार्क मछलियां उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर चुकी थी और क्रामवेल के बरअक्स उन्होंने टोनी को अपनी खुराक के लिए नामौजू करार नहीं दिया था। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।